som pollen för det. कुछ भी कौन सा फल है? मेरे ख्याल से Betel nut. Yeah. look like. I don't know how that looks like. You are saying you do not know. पर betel nut कोई नहीं बताया मुझे. I know Maluba. Yeah. Orange with a little big. No, when it is coming, that is the green. When it ripen, When we were just when we were on this high road, an old man was standing with a shop. He came to me and said, "Can I ask you something? My brother is in the hospital and he is unconscious. Can you pray for him?" That mood came in him when he saw you walking by. Wel teruggeven. so what can I say? Kom zitten. No, you can't use Krishna with the chanting holiness means here. You can't use Krishna. Those who are chanting Krishna Naam, that means Krishna himself. There are no difference between Krishna and Krishna Naam. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasavidra. Purna Suddha Nishya Mukta Avinnat Tvat Namanam. Here they give intense this word. Avinnat Tvat Namanam. Avinna means non-difference from the Krishna's name and Krishna. That means you are chanting holy names, means you are direct connected with Krishna. You see that? Can you stay connected with Krishna if you are in school and your friends they are not Krishna consciousness? They are not in the Krishna consciousness, they have no problem. But you remember the Krishna. Whereas when you are school, you have to do school work. Then after school work, you remember the Krishna. You can coordinate according to the schedule. Understand? In your book, Jewels of the Huh? Heart, in your book, Jewels of the Heart, You are reading. yes, that you have written that Radharani, we have to have Radharani more. Wat is zeg het in het Nederlands? We moeten Radharani meer liefhebben dan Krishna. We have to have more love for Radharani than for Krishna. Yeah. Is it Because then- because Krishna, he loves Sri Radha. So for this we give intense to give love and affection to more Srimati Radhika than Krishna. Because our objective, who loves to whom? Krishna loves to Srimati Radhika, Radhika loves to Krishna. This is true. But when you compare who loves to whom? Most. Krishna, he loves to everybody. This is true. And Srimati Radhika, she loves Krishna one-pointed. So whose love is higher? Krishna's love or Radharani's love? Whose love? Radharani's love. When Radharani loves to Krishna is higher than Krishna, because Krishna, he loves to everybody. And Srimati Radhika, though she loves everybody, but her intends to Krishna. So for this regard, we love more Srimati Radhika than Krishna. one more question. And that is, there is say Vaishnavam Yathastambhu. That means Vaishnavam Yathastambhu. Vaishnavanam Jathasambhu. Okay. What is the meaning of Vaishnavanam Jathasambhu? That Shiva is the highest devotee. But, Shiva. yes, but is it then that Shiva is higher than Radharani's self? Shiva is not, no one can higher than Radharani. Even Krishna is not also higher than Radharani, opposite Shiva. This is the case.
Here see Vaishnavanang Yatha Sambhu, Nimnanang Yatha Ganga. Vaishnavanang Yatha Sambhu, that means there are many Vaishnavas. But among all these Vaishnavas, Shivji is the topmost Vaishnavas. So saying these words in Srimad Bhagavatam, Vaishnavanang Yatha Sambhu, Nimnanang Yatha Ganga. और पुराणना इदम यथा अदेवतानां अच्युता. Achyuta means Krishna. But here in this content explained, there are so many Vaishnavas. Vaishnava means those who are the devotee of Lord Vishnu. That is called Vaishnava. You understand? What is the meaning of Vaishnava? That is the Those who are the devotee of Lord Vishnu. Krishna's one name is called also Vishnu. So there are many Vaishnavas, devotees of Lord Vishnu or Krishna. But Lord Shiva is the topmost devotee of Lord Vishnu or Krishna. He is a devotee. Devotee means he serves to Krishna. Who has devotional service and love and affection towards Krishna. That is called devotee. Devotional service. And Shivji, he always absorbed with Vishnu and Vishnu Nam. And for this regard, Krishna, he gives so many responsibilities to Shivji. Understand? What is the responsibility of Shivji? Preach Mayavad. Shivji responsible to destroy. शिवजी के यह कार्य भगवान ने समर्पित किया, कार्य देगा सृष्टि को ध्वंस करना. अब ब्रह्मा जी को क्या कार्य दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रह्मा जी टू क्रिएट सृष्टि का कार्य. भगवान सब कुछ करते हैं, तथापि एक एक भक्त को एक एक कार्य अपने दे दिया. असंग भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में समस्त जीवों के क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं. लॉर्ड कृष्ण ही नरिशमेंट ऑल द लिविंग एंटिटीज इन द फॉर्म ऑफ विष्णु. So now is coming the three devatas, Brahma, Shiva and Vishnu. Krishna actually he is the supreme creator. मूल सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान कृष्ण. But he gives the duty to Brahma ji to create. Actually Brahma ji he has no power to creation. Do you understand? Krishna he creates all the ingredients, and Brahma ji just he also collects them. Collects and builds. Just give an example. One person he wants to build one building or house. That person he collects all the bricks, sand, iron, all kinds of materials, and give to the workers. Then workers is building this house. And we are saying, oh, this person he builds the house. Actually, who built this house? The owner. Because he just gave the materials, and he is doing this. Understand? In the same way, all the ingredients coming from Krishna, Vishnu. That is called the Mahat Tattva. Maybe yesterday you told yesterday, no? How the creation, how this coming is, and 14 types of 14 jo hai Mahat Tattva is coming. But everything is coming from Krishna. That is from Krishna. Understand? This is actually. Mitti, Jal, Agni, Vayu, Akash. Mitti means earth. Vayu means air.
Jal means water. Mitti, Vayu. Agni means fire. And Kirite, Akash. Akash means space. Actually, all these things, and very minutely, subtle way coming from Vishnu. Bhagavan Krishna he gives. Understand? Then everything you are giving to Brahmaji, Brahmaji he is created. So you are saying Brahmaji is the creator. Actually Brahmaji he is not original creator. You understand this? Just in their worker, they are building this house. Actually Brahmaji he is as like worker. All ingredients are coming from Bhagavan. Even subtle and gross, everything is coming from Krishna also. What you will say to the spiritual and also material, everything is coming from Krishna. They have no power to creation. So for this regard, Shastra says, Prakriti is thinking, I am creating. Actually, this is not. For this regard, Krishna says, Srimad Bhagavad Gita, Maya Dakshina Prakriti Swate Sacharacharam Hetu Ananya Kunte Jagadvi Parivartate. According to my guidance, Prakriti nature, she is creating. I am giving all the ingredients. I am giving the instruction how to do this. I am giving all the materials. What kinds of materials did he say? Earth, water, air, fire. Sukshma and sthul. Sukshma means subtle and gross. Everything is there. The workers, he is not bringing the what is called bricks, sand from their house. With the owner of the house, he is taking everything. Just giving the worker, okay, do this. And he is giving the instruction also. Understand? If you are the owner of the house, you are giving the own instruction. And you brought all the ingredients and giving the instruction of your worker. I want this type of house, this. How many doors, how many windows, everything. How many storage. You giving all the instruction. Then workers, they are working. In the same way, Brahmaji, actually, he is not the origin, Sristikanta. Creator. And creator. Krishna. And everything. So, Srishti, Sthiti, Pralaya, Sadhana, Shakti, Reka. Srishti, Sthiti, Pralaya, Sadhana, Shakti, Eka. All the Shaktis, potency is coming from Krishna. And Bhagavan is giving all the potency. And even the gross energy or what is called? Subtle energy is coming from Krishna. This is the Sukshma Vasthu, everything coming from. This is the working. And Brahma Samhita very clearly explained this. Srishti, Sthiti, Pralaya, Sadhana, Shakti, Reka. Reka means Eka. Everything is coming. But sometimes Prakriti or Maya sometimes false egos. They are thinking, I am there. Because Prabhuta Pai Kai Modana Hui. Tulsidas has written in this verse, if anybody will get some, what is called, power, position, he thinks, I am there. That time he neglects to others. I am doing this way. Just Gurudev gave an example. Once one dog, he was sleeping under one, what is called, small car, that is called small the bullock cart. You know bullock cart? Yeah. Bullock cart for the cows. They pull the bull. The bull pulls. Pulls the cart in the farming. Yeah, small carts. You don't know? Yeah. The bullock, bull, they also pulling the cart. Yeah. And putting some load. These things. So one dog, he was sleeping under the bullock cart. Understand this? What happened? Then same time the dog wake up. And dog start to walk.
and same time also The cart the car also starts to move. start to move. And then dog is thinking, oh, I am carrying moving this. cart. Actually, car is not on its back, nothing. And something also happened when that dog stopped. Also, moved, The cart car stopped. also stopped. Dog is thinking, yes, this is true. I am doing. I am doing. Because Maya sees creates these things also. This is called the false egos. I am doer. Look, this example is perfect example. I am thinking I am doer. Actually, I am not doer. Krishna is the supreme doer. So for this regard, Maya see actually Maya see has no power to also creation. Because Maya see is called Jada Maya. She has no power to creation. But Lord Vishnu, he gives some potency, Shakti. That time Maya see and performs this activity, she thinking I am creating. So for this regard, very clearly Krishna says to Arjuna this philosophy. That philosophy is called Prakritivad. Prakritivad means the doctrine of nature. Prakritivad. And some philosophers, they are thinking there are no need to accept the Lord. भगवान के स्वीकार करने की जरूरत नहीं है. भगवान नाम से कोई वस्तु ही है ही नहीं. यदि भगवान नाम में कोई वस्तु है, वो क्या है? ये कोई अशरीर और शक्ति मात्र कहा गया. Some energy there. Formless. Some शक्ति. प्रकृति वो सब कुछ करते हैं. प्रकृतिवाद जो कहा जाता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर, प्रकृतिवाद की यही कथा है, ये भगवान के स्वीकार करने की जरूरत नहीं है. भगवान नाम से कोई वस्तु है ही नहीं. प्रकृति अपने अपने सब कार्य करते जा रहे हैं. देखो, हवा आ रही है, गर्मी के समय, ठंडी के समय हवा चल रही है, बारिश हो रही है. प्रकृतिवाद यही कहते हैं ये सब अपने आप होते चलते जा रहे हैं. कोई जरूरत नहीं है भगवान के स्वीकार करने की, कोई जरूरत नहीं है. यू अंडरस्टैंड? नो नीड टू एक्सेप्ट टू लॉर्ड. प्रकृति स्पॉन्टेनियस, शी परफॉर्म्स एवरीथिंग. भगवान को स्वीकार नहीं करते. प्रकृतिवाद जो है वो भगवान को स्वीकार नहीं करते. So, but here Bhagavan Krishna, he says to Arjuna, and also says this, no, this philosophy is completely what? False. Particularly Maya Dakshina. Prakriti, she creates everything according to my guidance. Under guidance, the Prakriti she creates. Yesterday before I was told, sun rises, sun sets, and air is blowing. How? According to the instruction of Krishna. According to the instruction, here the air means air is blowing, here air means they are presiding deities of the air. वायु वायु के अधिष्ठात्री देवता, उसके पवन देव कहा जाता है. ये सूर्य जो देख रहे हैं, ये सूर्य जो शाम जब देख रहे हैं, जो गोलाकृति सूर्य देख रहे हैं, इसके अधिष्ठात्री देवता के नाम ही सूर्य देव. पृथ्वी, हम जो पृथ्वी जो मिट्टी कह रहे हैं, इसके अधिष्ठात्री देवता पृथ्वी देवी है. वेदों में, उपनिषद में कहीं कहीं ऐसे कहा गया, पर्वत कथा बोलते हैं, माउंटेन स्पीक समथिंग, समुद्र बोलते हैं. जैसे रामायण में हम देखते हैं, भगवान रामचंद्र समुद्र के कहा तुम मुझे रास्ता दे दो. 3 दिन तक भगवान रामचंद्र समुद्र के किनारे पर बैठे रहे. रामायण देखा आपने? सीताहरण के पश्चात भगवान रामचंद्र वानर सेनाओं के लेकर के समुद्र के तट पर बैठे. इतना विशाल समुद्र, उत्ताल तरंग, बड़े बड़े लहरियां आती जा रही है. अरे ये समुद्र के पार करके लंका में कैसे जाएंगे? इसलिए भगवान रामचंद्र बहुत दिनों, भगवान रामचंद्र की गुण कैसी है? भगवान रामचंद्र ही द कंप्लीट द एम्बॉडीमेंट ऑफ विनय. विनय समझते हो? विनय कृष्ण. अरे विनय, वेरी हम्बल. विनय कृष्ण.
भगवान इतने करुणामय, वेरी हम्बल. How we cross the ocean and go to the Sri Lanka? Then Ramchandra, he seated on the beach. 3 days he meditated to Samudra. Here Samudra means the presiding deity of ocean. समुद्र के अधिष्ठात्री देवता है, आज समझ में नहीं, उनको स्मरण करने लगे, जो हमें रास्ता दे दो, हम लंका पहुंच जाए. 3 दिन हो गया, समुद्र के बड़े बड़े लहरियां आ रही हैं, आवाज चल रही है, समुद्र के तरंग जो है कम नहीं हुआ. 3 दिन हो गया. लक्ष्मण बिगड़ गए. लक्ष्मण कहने लगे, भाई हमें यह आदेश दे दिए, मैं इसको क्या बोलते, इसको सुखा देता हूँ. रामचंद्र तब भी कहने, लक्ष्मण धैर्य धारण करो. अच्छा, 4थे दिन हो गया, तथापि समुद्र की कोई अधिष्ठात्री देवता कोई सामने नहीं. तब भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण तुम मेरे तीर धनुष ले आओ. तीर धनुष ले आओ, मैं समुद्र के सुखा देता हूँ और समुद्र पार कर लंका में चले जाते हैं. उस समय भगवान रामचंद्र जब तीर धनुष हाथ में लिया, रामायण में कथा है, तो साक्षात समुद्र के अधिष्ठात्री देवता है वो प्रभु हाथ जोड़ करके प्रभु राम के निकट प्रार्थना करके सिर झुकाती कहने, प्रभु आप ही तो सृष्टि करता. उसमें बहुत शिक्षाएं है. उसमें भगवान रामचंद्र कहने लगे, देखो बोले दुष्ट के साथ कभी मित्रता करने से तुम्हारे फल नहीं होगा. जो दुष्ट व्यक्ति है ना, छल कपट, उसमें रामचरितमानस में लिखा है, ये आई थिंक 6 और 4 व्यक्ति के साथ यदि आप मित्रता करो तो आपके फल नहीं होगा. छल कपट के साथ मित्रता करने से तुम्हारे नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा. उसमें बहुत सुंदर पैर है, मैं भूल गया, वो बताऊंगा. ऐसे लाओ. तो भगवान रामचंद्र जब तीर धनुष ले लिया, तो साक्षात समुद्र के अधिष्ठात्री देवता प्रेसिडेंट डेडी ऑफ ओशन हाथ जोड़ करके भगवान राम से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारे दोस्त तो नहीं है, ये प्रभु आपने मुझे पद दिया, हमारे ये समुद्र की जो कार्य करना है, ये आपने मुझे ये स्थान को दिया आपने, और आपने ये प्रकृति रचना किया. यदि मैं बंद हो गया, माने लहरियां और बंद हो जाए, प्रकृति क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा. बिगड़ जाएगा. यदि समुद्र के जलधारा यदि बंद हो जाए तो प्रकृति बिगड़ जाएगा. आपने ही तो रचना किया, आपने अनुशासन किया. अनुशासन माने आपने ये लॉ को बनाया. ये जो प्रकृति जो नियम जो चलते जा रहे हैं, ये प्रकृति के नियम किसने बताया, किसने बनाया, किसने? Do you understand? भगवान ने. उस समय समुद्र के अधिष्ठात्री देवता भगवान राम के, प्रभु आप तो निधान हो, आपने लॉ बनाया, और यदि मैं तब जो हो गया आपके रास्ते पर दे दिया तो प्रकृति के नियम व्यवधान आ जाएंगे, नष्ट हो जाएगा, प्रकृति बिगड़ जाएगा. आप चाहे आप कुछ कर सकते हैं, आपकी तो आंखों की पलक पड़ते अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है, और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड क्या होता है, ध्वंस हो जाता है. गीता में ब्रह्म संहिता में क्या है, दस्यैक निःशोषित है, ये श्लोक में है. जिनकी आंख क्या बोले, सांसों की लेना और सांस की छोड़ना, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है, और अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड क्या हो जाता है, ध्वंस हो जाता है. जस्यैक निःशोषित काल ब्रह्म, ब्रह्म संहिता श्लोक है. अनंत करोड़ विश्व, जिसके सांस लेने के अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड जिसके अंदर में प्रवेश कर जाता है, और सांस जब छोड़ते हैं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड उनकी अंदर से बाहर आ जाता है. जैसे गीता में भगवान अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराया ना, इतने ब्रह्मांड भगवान के अंदर से बाहर है और फिर अंदर है.
तो उन्होंने भी उसी पर ध्यान करने लगे। है? तब क्या किया? तब समुद्र ने कहा प्रभु आप ही निधान, आप बताइए क्या करें। है? तब भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे समुद्र के वेग जो है, वेग समझते हो, क्या बोले, गति, nature working flow, stream of the water of the ocean, flow, समुद्र की जो फ्लो है, तो उसके गति को क्या कर दो, धीमी कर दो। धीमी समझते हो? slow है? स्थिर कर दो, धीमी कर, धीमी समझते हो? धीरे 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 धीरे। समुद्र तो प्रवाहित होगा, जल तो प्रवाहित होगा, है? किंतु उसको धीर कर दो बस। तो समुद्र ने क्या की, ऐसे ही किया, जल को माने धीमी कर दिया, स्थिर कर दिया। उसमें स्वयं भगवान रामचंद्र बानर सेनाओं के द्वारा, हनुमान आदि के द्वारा उसमें क्या बनाया, सेतु बनाया, पुल बनाया, पुल बनाया, सेतु, ब्रिज, सेतु बनाया, ब्रिज बनाया। देखो करके है। मेरे कहने की तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी देख रहे हैं इसके एक एक अधिष्ठात्री के देवता है। जैसे शास्त्र में लिखा है, ये पहाड़ बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं, ये क्या बोल रहे, कौन बोले, मिट्टी थोड़ी बोलता है, उनके अधिष्ठात्री देवता, इसको समझना चाहिए है, इसके अधिष्ठात्री देवता। और ये सूर्य देख रहे हैं, ये सूर्य के अधिष्ठात्री देवता है। और वही समस्त देवता भगवान की आज्ञा से, आदेश से सब कुछ काम करते जा रहे हैं। जैसे एक बड़ा ऑफिस है और उसके ऑफिस के जो डायरेक्टर जो है, कंपनी के डायरेक्टर जो है, उस डायरेक्टर के अनुसार सब लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे एरोप्लेन कंपनी है, जैसे अभी अभी सुन रहे जो जेट एयरलाइंस क्या हो गया, बैंकरप्ट है। किंतु वो उसके कंपनी के जो मुख्य जो डायरेक्टर जो है, उसके आदेश से सारे हजारों लोग, कितने 20 लाख वर्कर्स काम करते रहते हैं। एक एक एयर कंपनी में कितने हजार लोग काम करते रहते हैं। उसके मुख्य कौन है, डायरेक्टर, जो चीफ डायरेक्टर कहा जाता है। चीफ डायरेक्टर, उनके आदेश के ऊपर सभी लोग काम कर रहे हैं। 20-25 हजार जो वर्कर्स जो है वो काम करता है आदेश है। आज ये फ्लाइट यहीं पर उड़ेगी और नहीं करेगी, उसके उनके आदेश से सब कुछ करते। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के आदेश से, निर्देश से, अकॉर्डिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण है, ये सब ब्रह्मा आदि देवता लोग अपने अपने कार्य करते जा रहे हैं। एक ब्रह्मा नहीं है, हम जिस तरह पर, ये तो एक ब्रह्मांड है, ये सबसे क्या है, छोटा ब्रह्मा, चार मुख वाले ब्रह्मा है। और ये सबसे छोटी क्या है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। इससे अपेक्षा करोड़ गुना ब्रह्मांड है, मिलियन ब्रह्मांड है। और करोड़ जो है ब्रह्मा, शिव, ये समस्त दिक्पाल, इंद्र आदि देवता लोग सब तो किसके अनुगत्य में काम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के अंदर। श्रीमद् भागवत में श्लोक है, ब्रह्मा आदि देवता लोग स्तुति आदि करते हैं, स्त्री है जिनके चरण कमल में ही करते हैं। किंतु पद प्राप्त हो जाते ना, वो सपने अभिमान कर लेते हैं। प्रभु इसलिए कहते हैं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रभुता पाई काई मोद ना होई है। छोटा कोई इसके पद प्राप्त हो जाता, पद समझते हो, पोजीशन, उनके गर्व हो जाता है, मैं करने वाला। इसी कथा को चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज संदर्भ में वर्णन किया, उसी कथा सुनाता हूँ, सुनो ठीक से है। एक बार ब्रह्मा जी के उसी प्रकार जो है अभिमान हो गया, ये मैं सृष्टि करने वाला हूँ है, मैं सब कुछ करता रहता हूँ, अच्छा है। तो ब्रह्मा जी के अभिमान जब हो गया, भगवान के एक नाम है दर्पहारी मधुसूदन। दर्प माने अहंकार किसको हो जाता है, भगवान के सारे दर्प अहंकार को क्या कर देते, नष्ट कर देते, चकनाचूर कर देते। चकनाचूर समझते हो, सब नष्ट कर। तो एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से, सप्तलोक से द्वारका में पहुंचे भगवान के साथ मिलने के लिए है, मिलने के लिए आ गए है। ये देखो
ब्रह्मा जी के मन में यह अहंकार था, मैं केवल सृष्टि करता, मैं ही अकेला ब्रह्मा हूं, है, और मैं जिसको सब कुछ करता रहता हूं। तो भगवान ने ऐसी लीला भी कर दिया। ब्रह्मा जी जब द्वारका में पहुंचे, द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को रोक दिया। भगवान की इच्छा से द्वारपाल रोक दिया। द्वारपाल सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड द्वारपाल बोले तुम कहां जाना है? ये भगवान के साथ, कृष्ण के साथ मिलना है? अच्छा रुको, मैं प्रभु से परमिशन लेकर के आता हूं। जब प्रभु जी आप परमिशन दे तो आप अंदर जा सकते हैं। ब्रह्मा जी बाहर खड़े रहे, ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी बाहर खड़े रहे और द्वारपाल सिक्योरिटी गार्ड उस समय भगवान कृष्ण के पास गए। उस समय भगवान कृष्ण सुधर्म सभा में बैठ करके कुछ काम कर रहे थे, भगवान है और द्वारकाधीश है, काम कर रहे थे। द्वारपाल जाकर के वहां पर खड़े हुए। भाई कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, आप जल्दी जाकर तो आप प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं, एक एटिकेट होता है। जब वो काम से निवृत्त तो हो जाएंगे, जब आपके तरफ देखेंगे तब तो आप पूछेंगे। भाई क्या बताऊं, गजब की बात है। द्वारपाल खड़े रहे, नहीं कितने घंटे, 2-3 घंटे खड़े रहे और भगवान कृष्ण अपने कॉपी में जो कुछ लिखते जा रहे हैं, कुछ कैलकुलेट, कुछ जो काम कर रहे हैं। 2 घंटे, और 2 घंटे वो ब्रह्मा जी बाहर खड़े रहे। उसके बैठने के आसन फासन कुछ नहीं है, हो सकता है मच्छर चपड़ रहे हैं। भाई देखो, 2 घंटे के बाद भगवान कृष्ण ऐसे कलम पकड़ करके ऐसे ऊपर मुंह करके देखा। द्वारपाल के पूछा क्या बात है, क्या समाचार है? द्वारपाल ने कहने लगे, प्रभु एक व्यक्ति आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। One person has come To meet with you. he wants to meet with you. then कृष्ण बोले कौन आए हैं, कौन आए हैं, जाओ पूछ करके आओ। द्वारपाल आकर के बोले, ब्रह्मा जी के बोले आपका नाम क्या है? ब्रह्मा कहने लगे मेरे नाम ब्रह्म है। जाओ भगवान के पास जाकर कृष्ण के पास बोलो ब्रह्मा जी आए हैं। फिर द्वारपाल फिर आ गया और फिर कृष्ण लिख रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं ना। भाई बड़े ऑफिसर जैसे ना काम करते रहते हैं, वो भी 2 घंटा फिर खड़े हुए। द्वारपाल खड़े रहे और ब्रह्मा जी 2 घंटे बाहर। कितने घंटे हो गया? 4 घंटे ब्रह्मा जी मच्छर चपड़ रहे हैं। भाई 2 घंटे के बाद भगवान कृष्ण ऐसे सिर ऊंचा कर किया। फिर बोले द्वारपाल क्या बात है, फिर क्यों आ गया? प्रभु जी ब्रह्मा जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। ब्रह्मा? कौन ब्रह्मा? पूछो। उनके नाम क्या है? कौन ब्रह्मा है? अच्छा, द्वारपाल गए। द्वारपाल फिर आकर के ब्रह्मा जी के बोले प्रभु जी पूछ रहे हैं कौन ब्रह्मा? भाई ब्रह्मा जी तो सिर पर हाथ रखे बोले 3 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, इधर मच्छर मारते मारते ना बैठने की जगह दिया, ना एक गिलास पानी पिलाया। भाई हम बैठते हैं कम से कम 10 वक्त यहाँ पर पानी रख देते हैं। भाई बड़े बड़े घर होता है ना, वो चारी तरफ दीवार, ऊंची ऊंची दीवार होता है और बड़े बड़े वो क्या बोले गेट होता है। समझिए ये द्वारकाधीश है, कोई साधारण थोड़ी ऐसी व्यक्ति है, थोड़ी ऐसी खुला मिला जाएगा। वो भी क्या रखता है? पानी का नहीं वो क्या रखते हैं? टेलीस्कोप रखते हैं, कौन आया है नहीं बाहर, कौन आया नहीं, ऐसे नहीं खोला जाएगा, ऐसे देखेंगे कौन आया भाई, हाँ फलाना व्यक्ति दूध ले लेगा। सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी है ना, वो भी दरबार खोलना तो बहुत दूर की बात है। समझो नहीं, अमेरिका एम्बेसी में पहुंचो, वो अंदर कहाँ रहते मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, वो तो ऐसे ऐसे माइक से बोलता है। हाँ मुझे पता नहीं वो कौन बोल रहा है, जेंट्स बोल रहे हैं कि लेडीज बोल रहे हैं। आज समझ नहीं, एक साधारण इस जगत में अमेरिका एम्बेसी में जाओगे आपको पता लगेगा कौन आपके साथ बात कर रहे हैं। वो गेट के अंदर है, वो आपको वो हमें देख रहे हैं, हम उसको देख नहीं पाएंगे। चलो फिर सिक्योरिटी गार्ड के बोले कौन ब्रह्मा है? ब्रह्मा जी तो हैरान हो गया, बोले 6 घंटे हो गया मच्छर पीटते पीटते, बोले कौन ब्रह्मा?
ब्रह्मा जी के मन में ये अहंकार था, मैं छोड़कर और कोई ब्रह्मा थोड़ी है। अच्छा ब्रह्मा जी कहना, अच्छा जाकर के बताओ, चतुर्मुख ब्रह्मा, पिता चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुष्सन है, चतुष्सन के पिता और चतुर्मुख ब्रह्मा आए। फिर दरपाल आ गया सुधर्मा सभा में, कृष्ण भी लिख रहे हैं, कृष्ण भी भगवान है ना, वो भी कम नहीं है, ढीठ नहीं है, कम ढीठ नहीं है, हाँ 2 घंटे खड़े रहे। 2 घंटे के बाद भगवान ऐसे कलम बंद करे, ऊंचा किया हाथ, ऊंचा किया सिर को, बोले क्या बात है, क्या समाचार है? ये प्रभु चतुर्मुख ब्रह्मा, 4 मुंह वाले ब्रह्मा और सनक पिता, सनक सनंदन उसके पिताजी चतुर्मुख ब्रह्मा। अच्छा आए हैं भगवान, बहुत आदर के साथ कहने जाओ, उनके आदर के साथ बुलाओ। तो गेट पर अभी जाकर के गेट खुला, अभी जितने साथ ब्रह्मा के साथ बात हुई ना, कहाँ से बात हुई? गेट के अंदर, और ब्रह्मा जी कहाँ है? गेट के बाहर। वो भी बात कैसे हो रहा है, हम लोग जैसे से बोल रहे हैं ना, गेट के बाहर ब्रह्मा जी गेट के बाहर भी देख नहीं पा रहे, गेट के बाहर ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। ऐसा समझे, मैंने ये बोला ना, टीवी आता है ना, आपके घर में है, वो टीवी लगा देते हैं ना, गेट के बाहर कौन आए हैं, कौन आए, हाँ इंटरकॉम, देखना। अच्छा अभी ब्रह्मा जी ने गेट के बाहर ने डोर खोल दिया, ब्रह्मा जी अंदर आए और उसके अत्यंत आदर सत्कार के साथ ले गए, भगवान के सुधर्मा सभा में ले गए। ब्रह्मा जी बैठे, भगवान कृष्ण बहुत गईन करके बोले, ब्रह्मा जी क्या समाचार है, क्या तुम्हारे साथ राज्य जो है ठीक से चल रहे हैं, ब्रह्मांड में कोई उपद्रव, असुर के उपद्रव नहीं है? तो इस कथा को ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु मैं आपके, तो मेरा जो कुछ मैं बताऊंगा, मेरे ब्रह्मांड कैसे चल रहे नहीं चल, किंतु मेरा मन में एक शंका है, डाउट। क्या डाउट है? ये आपने डांट पाल के जो प्रश्न पूछा है, कौन आए हैं और कौन ब्रह्मा आए हैं, इसके मतलब मेरे मन में लग रहा है मैं छोड़कर और कोई ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी के मन में ये पहले क्या था कि मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूं, सृष्टि करता हूं। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु मेरे मन में ये शंका है, अमा कोई आर कोई ब्रह्मा, मुझ छोड़ करके और कोई ब्रह्मा है क्या, और कोई ब्रह्मांड है? तो भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान मंद मुस्कान करने लगे। देखो भगवान की मंद मुस्कान यानी भ्रू की भंगी है, आंखें की पलक के साथ ही साथ है अनंत करोड़ ब्रह्मा उस सभा में, रसूदा सभा में आ गए है, जिसके जो है 8 मुंह वाले, 64 मुंह वाले है, 1000 मस्तक वाले ब्रह्मा, लाखों करोड़ ब्रह्मा जी आ गए है, नहीं अनंत करोड़ अभी शिव जी भी आ गए है। इस ब्रह्मांड के शिव जी के कितने मस्तक है, कितने माथा है? पंचमुख, 5 है। बोले इसमें से 5 से 10, 10 से लेकर हजारों करोड़ माथा वाले ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब आकर के प्रभु के चरण में स्तुति करने लगे। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, भगवान की जोग माया की ऐसे प्रभाव है, ये जो 4 मुख ब्रह्मा सबको देख रहे हैं, जितने भी मुख वाले ब्रह्मा जी और जो आए, किंतु और ब्रह्मा एक दूसरे के नहीं देख नहीं पा रहे। डू यू अंडरस्टैंड? जो 10 माथा वाले, 20 माथा वाले, 1000 मस्तक वाले जो ब्रह्मा जी या शिव जी आए, एक दूसरे के देख नहीं पा रहे, किंतु हमारे 4 मुंह वाले जो ब्रह्मा उसी ऊपर जो बैठे थे भगवान के पास, वो देख रहे हैं और सब आकर के प्रभु के चरण में स्तुति करने लगे। और सब ब्रह्मा के सिर पर जो मस्तक पर जो मुकुट और मुकुट जब ऐसे प्रणाम करने लगे, बोले एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा के मुकुट में जब टच होता है, स्पर्श होता है, झन 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 शब्द होना शुरू है। ब्रह्मा जी देखा, वाह, मैं तो सोचा था मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूं, इतने करोड़ ब्रह्मा, इतने महावाले ब्रह्मा, बाप रे बाबा, जैसे एक विशाल हस्ती के सामने एक छोटा सा चिट्टी मच्छर जैसे, मच्छर समझ लो, मक्खी और मस्कीटो, कितने बड़े बड़े ब्रह्मा जिनके शरीर हजारों मील बड़े शरीर है,
जिनके मस्तक है कितने शरीर। ब्रह्मा जी हैरान हो गया देख करके। और सभी के भगवान अत्यंत सुंदर मंद मुस्कान करते हुए सबको कुशल पूछा। और सभी कहने लगे प्रभु हमें किसने स्मरण किया, बुलाया किसने। भगवान कहने लगे देखो तुम लोग कुशल पूछने के लिए मैं बताया, क्या तुम्हारे ब्रह्मांड में कोई असुरों की उपद्रव है कि नहीं। सभी ने सुंदर जवाब दिया, प्रभु आप जब विराजमान हो तो असुर क्या बिगड़ सकता है। सभी प्रभु के चरण कमल के स्पर्श करके बोले जाओ अपने अपने स्थान पर चले जाओ। तो सभी ब्रह्मा दिक्पाल इंद्र आदि शिव आदि सब चले गए। तो हमारे छोटा ब्रह्मा जो है कितने माथा बोले, 4 माथे वाले ब्रह्मा जी भगवान के पास आकर प्रणाम करके बोले प्रभु मेरे हृदय में ये संशय था वो अपने आप दूर हो गया है। प्रभु आपने कृपा करके है मेरे सारे संशय को दूर कर दिया। बोले क्या संशय था, स्वयं भगवान तो जानते, तथापि पूछने लगे ये मेरा ये अहंकार था ये मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूँ, सृष्टि करता हूँ, मुझ छोड़ करके ना आपके अभी आपके कृपा से मुझे समझ में आ गया कितने ब्रह्मा कितने ब्रह्मांड है, यही कथा बता है। एक ब्रह्मांड नहीं है, एक ब्रह्मा भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मा। अच्छा इसको सृष्टि कौन करता है, स्वयं कृष्ण ही करता है। विष्णु है ये जो कुछ भी देख रहे हैं ये समस्त सृष्टि के कर्ता कौन है, मूल कौन है, हु इज द ओरिजिन क्रिएटर कृष्ण भगवान। वैनंदन श्याम सुंदर है इसलिए कहते तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र नंदन तुम्हारो इच्छा है जीवेर जन्म मरण। तुम्हारो इच्छा है ब्रह्मा करे न सृजन, तुम्हारो इच्छा है विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार। है शिव के कार्य क्या है, संहार करना, ढंग से करना। ब्रह्मा जी के कार्य क्या शब्द दिया, सृष्टि करना। और स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में क्या करते हैं, जीवों के पालन पोषण करना। यही है मेरे कहने की तात्पर्य जो है सृष्टि तत्व जो हम कहते हैं क्रिएशन, ये समस्त मूल क्रिएटर कौन है, भगवान कृष्ण है। उनकी इच्छा से सब कुछ चलते जा रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं उनकी इच्छा से सब कुछ चलते जा रहे हैं। हम भी जीवित है किस कैसे, उनकी इच्छा। तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर, तब इच्छा मत माया सृजे कारागार। ये जो माइक संसार जो देख रहे हैं इसका सृजन कौन करता है, ये माया करती है। तब इच्छा मत माया सृजे कारागार। कारागार समझते हो, प्रिजन है। ये प्रिजन जो है ये कौन सृष्टि करते हैं, ये माया देवी जो करते हैं। ये माया के कार्य उसी प्रकार है। भगवान ने उनको माया की 3 शक्ति दे दिया, सत्वगुण रजगुण और तमगुण। ये सत्व रजगुण तीनों गुणों के द्वारा ही सब कुछ कार्य कराते हैं। और हम लोग उसी में क्या होते हैं, माया की तरह हम कभी को अभिमान कर लेते हैं, मैं कर रहा हूँ। इसलिए कभी कोई कथा सुनाया था ना उस दिन, क्या सुनाया, 3 कुत्ते के बाद सुनाया था। माया के 3 कुत्ता है, एक सत्व रज और तमगुण है। आज कुत्ता को सुना है ना, कथा भूलिए सब वो शादी में जाते हैं। एक 3 कुत्ते जो है एक पार्क में मिले और 3 कुत्ते मिल करके अपने आप दुख प्रकाश करने। देखो आजकल इकोनॉमिक बहुत ये हो गया, हाई हो गया, इसलिए हम लोग के खाना पीना मिलता ही नहीं है। आज समझ में नहीं। एक तो लोग विवाह शादी करता ही नहीं है। अरे विवाह शादी करो तो पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा, है भाई। विवाह शादी इसलिए आजकल होता है ना, बोले विवाह शादी करने की जरूरत नहीं है, वो क्या बोले रजिस्टर, हाँ रजिस्टर कर लो, बात हो गया, क्या करना है, बेकार पैसा खर्च करके क्या हो गया है। और चलो मंदिर में चले जाते हैं, 2 रुपया के, इंडिया में ना 2 रुपया के माला खरीद लेते हैं तुम्हारे गला, तुम एक माला तुम हमारे गला डालो, तुम उसी माला हमारे गले में, एक माला से काम कर लेते। अरे पैसा खर्च ज्यादा होगा ना, कहाँ इतना पैसा लेता है। एक माला में हम दोनों ही शादी कर लेते हैं।
भाई 2 माला ले, 2 माला के पैसा देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? इसलिए एक माला खरीदते हैं, तू मेरे गले में डाल दे, फिर उसी माला के तेरे गले में डाल दे। शादी हो गया और क्या, माला डाल रही तो शादी है और क्या करना है? ठाकुर जी के सामने जाके, अरे ब्राह्मण के बुलाने की जरूरत नहीं, ब्राह्मण के बुलाओ तो उनको पैसा देना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगा। अच्छा बताओ, मुझे आपको शादी में बुलाओ तो 2 घंटे 3 घंटे तुम्हारे शादी में जो मैं मंत्र पढ़ूंगा तो दक्षिणा देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? फ्री में थोड़ी करता है। अच्छा सच मुझे कि सच फ्री में कोई नहीं करता है। साधु जितने भी बोले मीठी मीठी तो बोलेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब देखते हैं तो हमारे जेब में कितने पैसा आएगा, बेकार की बात है। इसलिए भाई कली युग है और इतने क्राइसिस है, पैसा कहाँ से ले आएंगे? इसलिए एक काम करते हैं, चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोले चलो भाई मंदिर में चलते हैं, एक माला खरीद लेते हैं और एक माला खरीद करके तू मेरे गले में पहना देना और उसी माला तेरे गले में पहना, हुआ क्या शादी? और क्या करना है? शादी क्या है? तो बर्बाद ही होता है, शादी तो बर्बाद ही होता है, तो जानता हूँ चलो। तो ये कुत्ता भी उसी प्रकार कहने लगे, भाई आजकल तो लोग शादी करता ही नहीं है और जो भी करे वो भोजन भी इतना कराते ही नहीं है। भाई भोजन कराए उसके पत्तल में कुछ रखे। और भाई देखो इकोनॉमिकल इतने क्राइसिस हो गया, आज के बड़े बड़े लोग भी उतना ही खरीदता है जितना खा सकता है। आज समझ नहीं, फेंकता नहीं है, माने नष्ट नहीं करता है। 2 समोसा खरीदता है, एक पत्नी को खिलाते हैं, एक अपने खाते हैं, पर तीसरी तो है ही नहीं कोई। भाई 3 समोसा खरीदो, पत्नी एक खाएगी, तुम एक खाओगे और तीसरी वाला कम से कम कोई गरीब दुखी को दे दो। बोले नहीं नहीं अरे पैसा ज्यादा है, 2 ही खरीदो। कितना समोसा खरीदना है? 2 खरीदो तेरे लिए, हम 2 हमारे 2 बस, और क्या जरूरत। तो 3 कुत्ता उसी प्रकार मानो बातचीत करने लगे। आजकल तो कोई विवाह शादी नहीं करता है, यदि भी विवाह शादी करे तो बड़े वो क्या विवाह में भोजन होता है ना, वो भोजन कराते ही नहीं है। और भोजन भी कराए आजकल तो सिस्टम ये हो गया, पैकेट सिस्टम हो गया। भाई पैकेट सिस्टम नहीं जानते हो? टेक अवे बस। भाई ये भी सिस्टम कर दिया ना भाई। अरे कौन इतना झंझट ले कि उसने खिला, ये करे वो करे, बस शादी में आ गया, एक पैकेट बना करके रखे, बैठा जा भाई खाना पीना बैठ करके खाए, कम से कम कुछ उच्छिष्ट तो जो बाहर फेंके तो हम खाएंगे। तो आजकल तो इतना ही हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस ऐसे हो गया, बड़े बड़े लोग भी छोड़ता ही नहीं है। 3 कुत्ते कहने लगे भाई हम भोजन तो आज 3 दिन से मानो भोजन मुझे नहीं मिल रहा है। इतने समय निकट में पार्क है ना, बहुत सुगंध आ रहे, रसिक गंध आ रहे। बोले चलो आज कैसे बात। बोले देखो इस गांव के बड़े सेठ जी के लड़की की शादी है और भाई देखो उस पार्क को इतने सुंदर रूप में सजाया, कपड़ा दे करके जैसे 10 मंजिल बिल्डिंग जैसे लग रहा है। इंडिया में देखा इधर बनाते हैं पार्क में, बोले बांस दे करके, बांस समझते हो? बांस दे करके, कपड़ा दे करके इतने सुंदर रूप में सजाया जैसे 10 मंजिल जैसे आपको लगेगा। विवाह शादी होता है और फिर दूसरे दिन शादी हो जाता है ना, कुछ नहीं, पार्क खाली हो जाता है। अच्छा चलो, किंतु देखो उस पार्क में वो सेठ जी जो अपने बेटी के लिए शादी के लिए बनाया ना, कपड़ा देखकर कितने सजाया, कोई व्यक्ति घुस नहीं सकता है, बहुत सिक्योरिटी गार्ड रखा है। मैंने कहा ना आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस है, केवल जिसके पास कार्ड है वही जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होगा, वो ऐसे देंगे तब वो खोलेगा तब जाएगा। बोले आम जनता जी, आम व्यक्ति नहीं जा सकते, हम कुत्ते हैं कहाँ घुस पाएंगे। 3 कुत्ते कहने लगे, तो उसमें 3 कुत्ते फिर कहने लगे चलो प्रयास करते हैं किसी तरह कहीं भी छेद मिल जाए, वहीं घुस जाएगा। अरे 3 दिन से खाना नहीं मिला, कहीं से कहीं तो कोई कुछ तो मिल जाएगा, चलो। तो 3 कुत्ते आ गया पार्क में, इधर उधर घूमा, देखा तो जाने के प्रवेश की कोई एक रास्ता ही है ही नहीं है। देखा घूमते घूमते देखा एक कोने में छोटा सा छेद था,
तो एक कुत्ता ने के मुंह को ऐसे घुसाया, थोड़ा घुसाया, घुसा के ऐसे ऐसे करते करते छेद को बड़ा कर दिया। तो पहले कुत्ता जो है वो घुस गया, अंदर चले गए, अंदर जाकर के देखा, उसका आंख तो धीरे बड़ा बड़ा हो गया। अरे कितने लड्डू कचौड़ी और खाने के इतने, मानो उनके लाल टपकने लगे जिह्वा से, और वो दौड़ने लगे। वहीं पर लिखा है क्या, ये क्या, रिसेप्शन हाउस, क्या बोले, गेस्ट हाउस, केवल गेस्ट वहीं पर आएगा, हैं? बस इतने दौड़ करके वो चलने लगे, कम से कम तो लड्डू कचौड़ी तो कुछ तो मिल जाए, खा लेता हूँ, मैं 3 दिन से भूखा है ना। वो दौड़ करके जा रहे थे, इतने समय सिक्योरिटी गार्ड आ गया। सिक्योरिटी गार्ड, कुत्ता कैसे घुस गया? सिक्योरिटी गार्ड ने क्या की, भाई क्या बताऊं, एक जलती हुई लकड़ी है ना, और जलती हुई लकड़ी को लेकर उसको पिटाई किया। भाई उसको खाना तो मिला ही नहीं, बस है इतना पिटाई की, 2-4 तो पिटाई कर दिया, कम 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 करते हुए उधर से घूम करके फिर उसी छेद से भाग गए। वे बाहर 2 कुत्ता बैठे हुए थे, 2 कुत्ता पूछने लगे, भाई तुम मुझे जल्दी गए, जल्दी कैसे आ गया, कुछ खाने के मिला? अरे कुत्ता तो पूछा ही नहीं है, मुझे क्या खाने के मिला? कहते हाँ खाने के, अरे भाई क्या बताऊं, जाने के साथ ही साथ मिल गया। 2 शब्द है। जैसे कोई हमारे मित्र आते हैं ना, मित्र कहते हैं भाई तुम्हारे पास बैठने का हमारे समय नहीं है, हमारे फलाना काम है, ये घर है, अच्छा भैया तुम खा कर जाओ जल्दी। जाने के साथ ही उसको खिला दिया। 2 कुत्ते कह रहे हैं, उसी प्रकार कह रहे हैं, मैं जाने के साथ ही साथ खिला दिया, मिल गया। 2 अर्थ है, जाने के साथ ही साथ पिटाई हो गया, वो बात नहीं करेगा, जाने के साथ मिल गया। अच्छा, दूसरी कुत्ता बोली था मैं जाता हूँ, वो भी उसी छेद से अंदर आ गया। देखा, बोले ये तो गेस्ट रूम में गए थे, मैं वीआईपी रूम में चलता हूँ, 3री मंजिल पर वीआईपी रूम में पर आ गया। देखा भाई इतने सुंदर मिठाई और नाजनी कितने क्या क्या, उसके देखते ही तो आँख बस जिह्वा से जो है पानी टपकने लगे। बस खाने के लिए जा रहे थे, फिर वो सिक्योरिटी गार्ड आ गया, वही सिक्योरिटी गार्ड, और 3 कुत्ते देखने में जैसे एक ही जैसे था, एक ही कलर के था, अरे अरे फिर दोबारा आ गया। वो क्या की भाई देखो, जहाँ पर वो ये होता है ना, उत्सव होता है ना, गर्म पानी वो खलता रहता है, भाई ज़्यादा आदमी आ जाए साथ ही साथ पानी चावल डाल देंगे और गरम गरम चावल आ जाएगा, लोगों को खिलाएंगे, हैं? इसलिए गरम पानी उबाल रहा था ना, उन्होंने क्या की, एक डब्बू होता है ना, कलची से पानी उठाया, गरम पानी उठाया और कुत्ता के ऊपर ऐसे मार दिया। गरम पानी शरीर पर लगते ही कुत्ता काऊ 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 करके भाग गया, आकर के बाहर उसी छेद से बाहर आ गया। और दोनों कुत्ता कहने लगे भाई तू जल्दी गए, जल्दी कैसे आ गया? बोले क्या बताऊं, मेरे जाने के साथ ही साथ गरम गरम मुझे मिल गया। गरम गरम 2 अर्थ है, मैंने गरम पानी से पिटाई किया, और गरम गरम खाना जो है ताजा ताजा मिला, उसके 2 अर्थ होता है, गरम गरम खाना मिल गया, ताजा ताजा मिले। 3री कुत्ते बोले भाई तुम्हें तो उनको मिला, जाने के साथ ही साथ मिल गया, इसके क्या मिला? ताजा गरम गरम मिल गया। अच्छा मैं जाता हूँ। बोले तू गए गेस्ट रूम में, तू गए कहाँ पर? वीआईपी रूम। हम जा रहे स्पेशल वीआईपी रूम में। बस वो 3री कुत्ते जो है, 3 नंबर कुत्ते जो है उसी छेद से अंदर गए और बिल्कुल गेस्ट रूम के पार करके वीआईपी रूम के ऊपर पार करके 3री मंजिल पर 4थी मंजिल पर चले गए। और देखा क्या, अभी तो बहुत अजीब का बात, और इतने सुंदर, जहाँ पर स्पेशल वीआईपी लोग जैसे मंत्री लोग आते हैं, वीआईपी साधारण लोग नहीं आते, और वो मंत्री थोड़ी खाता है, उसके लिए सब पैकिंग करके रखा जाता है। आज समझते हैं, मंत्री फंत्री हो तुम्हारे पास नहीं, खाने के लिए बैठेंगे नहीं, उसके साथ बैठने के समय भी नहीं है, केवल इतने आए हैं बस विवाह में आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। हाँ आए थे हमारे घर में, हमारे लड़की के शादी में प्रधानमंत्री आए थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे, इतना ही तक, बस ये कम बात नहीं है। फिर उनके लिए जो कुछ भी पैकिंग जो है उनको हाथ में दिया नहीं जाता है, उनके पीए के हाथ में, पर्सन के हाथ में दिया जाता है, सब पैकिंग करके रखा है। कुत्ता देखा, वाह इतने सुंदर पैकिंग भी इतनी सुंदर है, चलो एक पैक में लेकर के लेता। वह कुत्ता ऐसे झपट करके जा रहे थे और इतने से वही सिक्योरिटी गार्ड आ गया। अरे फिर दोबारा आ गया, हमारी एक लाठी लेकर के
एक तो मार दिया, काऊ काऊ कर, कुत्ता भागने लगे, सिक्योरिटी गार्ड ने उस कुत्ते को पकड़ लिया। विचार करने लगे ये कुत्ता कोई हमारी ये जो गेस्ट में कोई होगा सही, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं, इसमें से पकड़ करके बांध करके रखता हूँ, जब सब लोग खा पी कर चले जाएंगे तब उसको छोड़ेंगे, जिसका है वो कुत्ता ले जाएंगे, तो उसको बंद करके रखा। और इधर बाहर दो कुत्ते जो है इंतजाम करने लगे, भाई 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गए, कुत्ता तो अभी बाहर आया ही नहीं। 2-3 घंटे के बाद जब सब लोग खा पी के सब चले गए ना, सिक्योरिटी गार्ड उस कुत्ते को छोड़ दिया, 2 थप्पड़ मार करके कुत्ता फिर वहीं से। 2 कुत्ते बाहर बैठे हुए था ना, अरे भाई तू इतने समय तो कहाँ चलेगा, हम तो चिंतित हो गया है, क्या बात है? वो कुत्ता क्या बोले जानते हो? किसी कुत्ता बोले जानते हो, अरे भाई मेरे प्रति इतना प्रीति है, मुझे आने नहीं दे रहे थे मुझे वापस आने नहीं दे रहे थे। जैसे हमारे कोई मित्र बहुत दिन के बाद हमारे घर में आते हैं ना, मित्र कहते हैं भाई तुम्हारे घर में हमारे बैठने के समय नहीं है, मुझे जाना है, जाने के बैठो है? अरे मित्र बहुत दिन के बाद आए हैं, आपको जाने थोड़ी देंगे, दरवाजा बंद करके रखेंगे, कहाँ से जाओगे? जाने नहीं दूंगा, जब तक तुम भोजन नहीं करोगे, जब तुमके दक्षिणा नहीं दूंगा, कपड़ा लगता नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। भाई हमारे मित्र होते हैं, सबसे जो घनिष्ठ मित्र होता है, हम कहते हैं ना, कहते हैं हम चले जाएंगे, कहाँ जाओगे? अभी तो आए हैं, अच्छा जाना है तो कल जाना, परसों जाना, 2-4 दिन बाद जाना, और भी ऐसे जाना नहीं है, खाली हाथ में थोड़ी जाने दूंगा, तुमको अच्छी तरफ से भाई कपड़ा देंगे और ये देंगे। भाई इंडिया में होता है ना, बहुत कुछ बांध छुंद करके देते हैं ना, तब भाई इसी प्रकार मुझे आने नहीं दे रहा था, वो आने नहीं दे, उसको बंद करके रखा है, वो नहीं बोले। 3 कुत्ते बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले जब सब लोग खा पी के चले गए ना, मुझे इतने आदर किया और आदर सत्कार करके इसी रास्ता में, मतलब क्या है, मुझे पिटाई करके बोले जहां से आए हैं वहीं से। अच्छा 3 कुत्ते क्या है? पहले कुत्ते तामसिक कुत्ता कहा जाता है, माया के जो है तामसिक, संसार में जीव काम क्रोध के द्वारा माया उस तामसिक गुण के द्वारा जीव को जो है संसार में दुख कष्ट भोगाते हैं। तीसरी कुत्ता क्या है? राजसिक गुण, सृष्टि करने होता है, हम करने वाले हैं, उसकी भी माया भी पीटता ही रहता है। और तीसरी कुत्ता क्या है? वो सात्विक कहा जाता है, परोपकारी जो जीव होता है, दूसरे के करते हैं, उसके भी प्रति हमारे माया मोह हो जाते हैं, कहते नहीं अब मत जाओ, किंतु माया देवी उसके भी पिटाई करते हैं। इस संसार में जो भी आएगा माया देवी उसको सब क्या करते हैं? पिटाई करते रहता है, क्योंकि माया के गुण ही यही है। माया के त्रिगुणात्मक जो माया जो है, ये कार्य उसी प्रकार है, वो सात्विक हो, राजसिक हो और तामसिक हो, सभी को माया देवी क्या करती है? पिटाई करती है। किसी को लट्ठी से पिटाई होता है, और किसी के जो है वो क्या बोले गर्म पानी से पिटाई होता है, और किसी के जो है हाथ से पिटाई होता है। किंतु इस तात्पर्य है, इस संसार में वो सभी को भगवान माया के द्वारा क्या करते हैं? पिटाई होता रहता है। ये माया क्या है? सत्व रज तम गुण, माया की कार्य यही है, जीवों की क्या करना? दंड देना, दंड देना, पिटाई करना माया की काम है। किसी के सात्विक, किसी के राजसिक और किसी के तामसिक, ये माया के कार्य इसी प्रकार, ये ब्रह्मांड इसी प्रकार रचा है भगवान। ये आप मत सोचो जे मैं बहुत सात्विक हूँ, मैं सत्कर्म करता हूँ, माया मुझे पिटाई नहीं करेगी, ऐसे नहीं कर सकते। माया पिटाई करेगी सबको, किसी को जो है लट्ठी से पीटता है, किसी के लोहे के डंडे से पीटता है, किसी के वो क्या डंडा होता है? सोना, सिल्वर डंडे से पीटता है, और किसी को क्या होता है? सोने के डंडे से पीटता है। माया उसी प्रकार सबके जो सत्य रज तम सबकी दंड देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव की जय। इसलिए इस माया से छुटकारा पाने के लिए उपाय क्या है? सत्य रज तम गुण, इसे छुटकारा पाने के लिए उपाय क्या है? बोले भगवान के नाम करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जब तक हरिभजन नहीं करोगे ना, माया पीटते ही रहेगा, पीटते रहेगा। हैं? बेल्ट से पीटे, डंडे से पीटे, लाठी से पीटे, पिटाई करेगी, है, और बांधेगा। हमारे भक्ति सिद्धांत तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं, माया त्रिगुणात्मी को बंधन करते, बांधते हैं किससे? किसी के लोहे के जिंजीर से बांधते हैं, और किसी के सिल्वर चांदी के जिंजीर से बांधता है, और किसी के सोने के। तीनों ही तो बंधन है। कौन सा बंधन आप स्वीकार करना चाहते हैं? चांदी का और सोने का? आप बताओ। कोई बंधन तो बंधन ही है, बंद करके रखता है। तो माया उसी प्रकार जो हमें बंद करके रखे है, सत्य रज और तमो, ये माया के कार्य है। बोलो माया देवी की नहीं। किसी का साथी कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण शरण। चैतन्य चरितामृत कहते हैं, गुरु और भगवान की सेवा करते करते माया देवी हमें इस संसार से छोड़ देते हैं, और कोई उपाय नहीं। जब तक हम हरिभजन नहीं करेंगे, इस माया से छुटकारा नहीं मिलेगा। आप सात्विक हो, राजसिक और तामसिक हो, इसलिए क्या करना चाहिए? हरिनाम करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हो गया जी। You need to turn it off first. ब्रह्मा जी के कथा आज बताएंगे, सृष्टि के बारे में बात करेंगे ना। ये आज That's कथा रहेंगे तो माया की जय कर सकते हैं हम, माया की जय कर सकते। दो कथा लोग के बहुत पसंद आते हैं, ये ब्रह्मा जी के और इंद्र जी के जो सुअर के, ये दो कथा पसंद आए, पसंद आते हैं। अच्छा लगता जो कितना समझता था वही कार उठाता हूँ। वो कुत्ता समझ रहे हैं, मैं जो है ये बैलगाड़ी को मैं ले जा रहा हूँ। एक्चुअल वास्तव नहीं, भगवान ने ऐसी किसी अहंकार कर देते ना, जीव के अहंकार के द्वारा वो करते मैं कर रहा हूँ, यही होता है। किंतु भगवान उसी प्रकार भी एक के साथ में होता है ना। कुत्ता जब चलना शुरू कर दिया और वो बैल के गाड़ी भी चलना शुरू कर दिया, और कुत्ता जब स्थिर हो जाता, मैंने चलना बंद कर देता है, बैल गाड़ी उसी को बंद कर देता। ये माया ऐसे भी रचा है, हमें ऐसे मोह उत्पादन करके रखे हैं, हमको समझ में नहीं दे रहा है, हमको समझ में नहीं दे रहे हैं जे मैं करता नहीं हूँ। मुझे ऐसे समझ में आ रहा है मैं करने वाला हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। इसलिए भागवत में क्या बोले, कर्तारो अभिमन्यते, क्या श्लोक है वो? अहंकारो विमूढ़ आत्मा कर्तारो अभिमन्यते। गीता में भगवान कहते हैं अहंकारो विमूढ़ आत्मा। अहंकार के द्वारा जीव ऐसे बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट हो जाता है, वो सोचता है मैं करने वाला हूँ। किंतु भगवान कहते हैं ददा अपनी बुद्धि योग, मैं ही देने वाला हूँ सब। हम चल नहीं पाएंगे, तो चलने की शक्ति किसने दिया? भगवान ने दिया। क्योंकि सोचता है मैं चल रहा हूँ। क्योंकि जितने भी अनार्जित शक्ति कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। इसी को जो जान लेते हैं वही मुक्त पुरुष के कहा जाता है। मुक्त पुरुष कौन है? जो जानते हैं सब कुछ। ईशावस्य सर्वमिदं जत्किंच जगत्तम जगत तेन तक्ता भुंजिता मां युद्ध कश्य सिद्धनम। ईशावस्य जो जग संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं तो सब प्रभु के हैं, और प्रभु के द्वारा ही सब जीवित हैं। ईशावत प्रभु के सब कुछ है, मेरे कुछ है ही। ईशावस्य सर्वम जत्किंच जगत तेन तक्ता भुंजिता मां युद्ध कश्य सिद्धनम। इस संसार में जो कुछ भी है हम जब भगवान के संस्कृत कर देते हैं और प्रभु के है इसको समझता है, तब वो दुख कष्ट में लगता ही नहीं है। प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया है। मैं तो लाया नहीं कुछ और मैं कुछ ले भी नहीं जाएंगे। उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया, तो उसके लिए हम दुख क्यों करते हैं? क्यों सोच रहे हैं? हम इसलिए सोच रहे हैं हम माया के द्वारा अहंकार के द्वारा विमूढ़ हो गया, और इसलिए कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारो अभिमन्यते। मैं कर्ता करने वाला, सब कर्ता एक ही करता है। कर्ता समझ लो, डूयर। वो डूयर कौन है? भगवान कृष्ण।
वो मुझे चलता है, वो जैसे चलाते हैं मैं ऐसे चलता हूँ। इसी को जो समर्पित कर देते हैं वही मुक्त हो जाते हैं, और उसी के न कोई सुख और दुख विभूत होता है। अहंकार भी भगवान होते हैं, अहंकार भगवान होते हैं। अहंकार इसलिए जीवों के इस संसार में फंसाने के लिए, ये माया से आता है ना, ये माया के गुण है। ये जो सृष्टि तत्व जो बता रहे थे, ये सृष्टि स्थिति के प्रथम क्या है? महत्तत्व। महत्तत्व से पहले क्या प्रकृति हुआ? अहंकार। अहंकार शब्द का अर्थ होता है मैं करने वाला हूँ। सृष्टि के पहले होता है क्या? अहंकार। जैसे अहंकार क्या है? कर्ता, मैं करने वाला। जैसे उसको कहा था इच्छा। जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए पहले क्या होगा? आप कब चलोगे? जब कोई इच्छा होगा मैं चलता हूँ। मैं, ये जो अहंकार जब हो जाता है तब कार्य सृष्टि होता है। सृष्टि की मूल प्रारंभ क्या है? अहंकार। मैं कर्तापन। अहंकार शब्द का अर्थ होता है कर्तापन। आई एम डूयर है, उसी की कहते हैं। जो अहंकार से क्या सृष्टि हुई? फिर 5 तत्व सृष्टि हुआ है। 5 इंग्रेडिएंट्स आ गया, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। 5 तत्व हो गया। फिर 5 जो है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय आदि तैयार हुआ है। ऐसे करते करते कितने तत्व होगा बताओ? 28वां तत्व होगा। सृष्टि में जो है 28 इंग्रेडिएंट्स के द्वारा एक सृष्टि होता है। आप लिखो इसका, भूल जाओगे। 28 इंग्रेडिएंट्स के द्वारा संपूर्ण रूप से सृष्टि की क्रिया। पंच, ऐसे पहले देखो, पंच कर्मेंद्रिय हो गया, पंच ज्ञानेंद्रिय हो गया, पंच तन्मात्रा हो गया, पंच महाभूत हो गया, कितने हो गया? 20 हो गया। मन, बुद्धि, अहंकार हो गया। ये अहंकार है ना, मन, बुद्धि, अहंकार। कहीं की चित्त लेता है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। कितने हुए? 24 तत्व हो गया है। और फिर आत्मा एंड परमात्मा कितने हो गया? 26 हो गया। फिर 2 तत्व है क्या? पुरुष और प्रकृति है 28। इसको कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन कर लो, आपके सृष्टि तत्व के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। आप जानने के लिए प्रयास करो तो आपके सब कुछ हो जाता है। ये सृष्टि कितने इंग्रेडिएंट्स के द्वारा सृष्टि होता है? कितने बताया? 28 कहीं कि 26 तत्व के माना गया, किसी ने 25 तत्व को माना, किसी ने 16 तत्व के माना, किसी ने 11 तत्व को माना, माने 11 तत्व को माना है। इसलिए अनेक जो है शास्त्र में अनेक तत्व बताया गया है। ये समस्त जो है बताया गया। किंतु गौड़ीय फिलोसफी में कितने तत्व को माना गया? 28वां तत्व को माना गया। प्रकृति और पुरुष लास्ट में। लास्ट प्रकृति और पुरुष। पुरुष तो भगवान होते, पुरुष का अर्थ भगवान तो है, किंतु उसके पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति, प्रकृति शब्द के शब्द अर्थ होता है स्त्री कहा जाता है, फीमेल। और पुरुष शब्द के अर्थ होता है मेल। जैसे इस संसार में जड़ विचार में हम देखते पुरुष और स्त्री मिलने से पुत्र कन्या आदि जन्म लेता है। उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति के द्वारा ये समस्त सृष्टि कार्य बताते जा रहे हैं। समझे? यही चली बात। इसे पुरुष और प्रकृति का, पुरुष शब्द के अर्थ होता है कर्तापन। पुरुष शब्द के अर्थ होता है मेल, और पुरुष शब्द के अर्थ होता है कर्तापन, दिया। और प्रकृति शब्द के अर्थ होता है स्वभाव, नेचर, जिसको कहता है आधार। आधार समझते हो? आधार में क्या कहते हैं? आधार एग्जिस्टेंस ना, क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस पोटेंसी। एग्जिस्टेंस पोटेंसी, यहाँ पर वस्तु रहता है, उसके आधार कहा जाता है। संस्कृत में अनेकों शब्दों के द्वारा इसको कहा गया है। इसलिए पुरुष और प्रकृति, आत्मा और परमात्मा कहा गया है। आत्मा जो वही समझ। गुरुदेव, जब मैं सोचूंगा मैं यहाँ से जाऊंगा, तो मैं सोचता हूँ मैं ही जाऊंगा, तो वो ईगो है। वो ईगो पहले अहंकार करते हैं, मैं जाऊंगा। ये जो है मैं, ये अहंकार आता है। तो
पहले आज्ञा लेके तब जाएंगे। नहीं, आज्ञा लेना तो वो तो फिर भक्ति में आ जाएगा। अभी आज्ञा भक्ति कुछ नहीं होता है। मैं जाऊँगा, जो कोई यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सोचता है पहले मैं जाऊँ, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, कर्तापन आता है ना, आई विल डू। वैसे नहीं सोचता, है वैसा नहीं सोचता। नहीं, माया के द्वारा आपको सोचना पड़ता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, अरे बहुत समय तो मैं बैठा, ये जो मैं जो है इसे कहा जाता है कर्ता। कर्ता समझ दो, आई एम डूयर, आई एम डूयर, कर्ता। ये माया हमें इसी प्रकार कराते हैं। अहंकार के द्वारा सब कार्य सृष्टि होता है। समझिए, इसलिए महत्त्व के सृष्टि के 24 ना 14 इंग्रेडिएंट्स दो महत्त्व में आ जाता है। इसके अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में पुरुष वो इंजॉयर भी होता है कि नहीं? पुरुष शब्द के अर्थ ही होता है एंजॉय, और डूअर, प्रकृति शब्द होता है एंजॉय। एंजॉय, वो डूअर भी वो करते हैं, वो एंजॉय भी करते हैं, दोनों करते हैं। चलो आप ज़्यादा बोलो, उतना ही समझिए बात। पुरुष शब्द का अर्थ है कर्तापन, आई एम डूअर। पुरुष शब्द के अर्थ ही होता है ये कर्ता। कर्ता मीन्स डूअर। प्रकृति शब्द के अर्थ होता है स्वभाव, नेचर। संस्कृत में कई अर्थ होता है। प्रकृति शब्द का अर्थ है स्त्री के प्रकृति कहा गया है। पुरुष शब्द के अर्थ होता है डूयर, आई एम डूयर, ये होता है। प्रकृति शब्द के अर्थ होता है आधार। आधार समझते हो? एग्जिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, पोटेंसी, आधार, सपोर्ट, फाउंडेशन। ये सब होता है। चलो बक करो। गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री गुरुदेव की जय। श्री भक्तिनाथ महाराज की